Hey everyone, welcome once again to our channel. In this video we are going to solve exercise 2.1. Okay, but before solving this exercise, let's recall the formulae of inverse trigonometric functions. Okay, so let's do that. Okay, so do you remember the trigonometric table which you have studied in your class 10th? So you should remember this one because we are going to use the values of the trigonometric functions from this table only. You have this table with now one thing you should know that for 0 degree you have to consider 0, for 30 degree you have to consider pi by 6, for 45 degree you have to consider pi by 4, for 60 degree you have to consider pi by 3 and for 90 degree you have to consider pi by 2. ऐसा क्यों होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री, तो पाई 180 है, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90, इसलिए पाई बाई 2 क्या है? 90. This you have already studied in your class 11th. Okay, now the second thing is the formula that we are going to use in this section. Now sign for positive you have to just consider the value as it is. यहाँ पे ये positive होगा तो हमें as it is use करना है, लेकिन negative के लिए we have some formula. Sin inverse of minus x, it is minus of sin inverse x. ये minus sign बाहर लेना है, you have to take this minus outside this. ये कब लेना है? When you have sin, when you have cosec, when you have tan. For these three values, these three trigonometric functions, you have to consider this minus sin inverse x, minus cosec inverse x, and then you have minus tan inverse x. Now the next three pair, this next three terms for cos, for sec and for cot. So for cos inverse, the formula becomes pi minus cos inverse x. For sec inverse of minus x, it is pi minus sec inverse of x. For cot inverse of minus x, it is pi minus cot inverse x. ठीक है, तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. यहाँ पे एक जैसे फॉर्मूला लिखना है, पाई माइनस दिस टर्म, देन अगेन यू हैव फॉर सेक माइनस दिस टर्म. तो ये याद करना है हमें. इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है जब हमारे पास ब्रैकेट में हमारे जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव होंगे. ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. ओके, so this I explained in my previous video, that domain and range of inverse trigonometric function. Okay, that means the principal value branch. Okay, you have to remember this one, the principal value branch. Now let's remember this. So you have the functions are sin inverse, cos inverse, cosec inverse, sec inverse, tan inverse, and then you have cot inverse. Okay, याद कैसे करना है इसको? sin inverse, cos inverse, डोमेन सेम है इनका, क्लोज इंटरवल -1 to 1, -1 to 1, इन दोनों को एक साथ लिखो. देन यू हैव द सेम थिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो, सो यू कैन राइट फ्रॉम दैट cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स. यहाँ पे क्या हो जाएगा? r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, इन दोनों का डोमेन सेम है, सो राइट cosec एंड sec टुगेदर. देन यू हैव tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, इन दोनों का डोमेन क्या है? r, रियल नंबर्स पूरा. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएगा. तो दोनों जो सेम वाले हैं ना हमारे डोमेन, उनको हम साथ में लिखेंगे. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, एंड देन टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें आगे यूज़ होने वाली है, तो इसे अच्छे से याद करना है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द डोमेन, सॉरी रेंज फॉर दिस. ठीक है, अभी साइन के लिए यू हैव द रेंज एज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ठीक है, अब ये वाले जितने भी हमारे रेंज इस टाइप के मिलेंगे, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, पहले हम उन्हें लिख लेंगे, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये हमने फिक्स कर लिया, ये हम इसी तरह से लिखेंगे. अब इसके बाद पाई बाई 2 का दूसरा कौन सा आएगा? साइन के साथ क्या आता है? कॉसेक. तो अब ये जो टर्म है इसमें आ जाएगा रेंज कॉसेक का माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, एंड देन यू हैव माइनस 0, इसमें से 0 निकाल देंगे. देन यू हैव इसके बाद फिर एक छोड़ करके टैन इनवर्स. ठीक है, ये हमेशा साथ में चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. अभी जो हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था उसमें भी हमारा साइन, कॉसेक और टैन, ये तीनों साथ में था. साइन, कॉसेक और टैन. वैसे ही कॉस, सेक और कॉट तीनों साथ में था. बिल्कुल वैसे ही जब हम रेंज, यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद कर रहे हैं, हमें उसी तरह से याद रखना है कि साइन, कॉसेक और टैन इनवर्स, इन तीनों का जो यहाँ पे तुम्हारा रेंज मिलेगा, यू विल गेट द सेम रेंज. ठीक है, यहाँ पे साइन का क्या मिल रहा है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. कॉसेक का क्या मिलेगा? थोड़ा सा वेरिएशन है, वो याद करना है, लेकिन इस तरह से याद करने से ये जल्दी याद हो जाएगा. कॉसेक इनवर्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0. ठीक है, टैन इनवर्स इट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अभी क्या है यहाँ पे बच गया है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स. ये हमारा दूसरा पेयर है, दूसरा ग्रुप है. उसके लिए हमें कॉस इनवर्स से स्टार्ट करना है. कॉस इनवर्स 0 टू पाई. अब जो भी आएगा वो 0 टू पाई से ही रिलेटेड है हमारा. अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2. ये सेक के लिए हो गया. जब हम कॉट की बात करेंगे, कॉट और टैन जो है वो दोनों ही ओपन इंटरवल में आंसर्स आते हैं, तो ये वाला ओपन इंटरवल हो जाएगा 0 टू पाई. तो ईजी, 0 टू पाई. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू दी है साइन इनवर्स ऑफ दिस. तो अभी हमें पता है, हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? ये माइनस साइन इनवर्स एक्स. दैट मीन्स यू कैन टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सो इन द सॉल्यूशन यू कैन राइट दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू
माइनस, क्योंकि हमारा x क्या है यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड, यू विल गेट दिस हाफ। अब ये हाफ वैल्यू किसकी है? सो नाउ यू हैव टू यूज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, फॉर दिस हाफ। किसकी है ये हाफ वैल्यू? नाउ दैट हाफ इज, नाउ गो टू द टेबल, साइन की वैल्यू ढूंढनी है और हाफ ढूंढना है। हाफ किस पे मिल रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हाफ कब मिल रही है? जब हमारा एंगल क्या होगा? π/6। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू क्या है? हाफ है। अब साइन इनवर्स और ये साइन, ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएंगे मतलब ये टर्म यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो यू विल गेट -π/6। आंसर तो आ गया हमारा -π/6। अभी हमें करना क्या है? हमें ये चेक करना है कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ये तब होगी जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगी, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? जो हमने टेबल में देखा, टेबल में हमारे पास क्या था? -π/2 टू π/2। -π/2 टू π/2 जो ब्रांच है वो है क्या एक्चुअली में? इफ़ यू लुक एट दैट केयरफुली, -π/2 टू π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज एक्चुअली -90 डिग्री टू 90 डिग्री। तो और ये क्या है हमारे पास? -30 डिग्री। ऑब्वियसली आ रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव दैट दिस -π/6 बिलोंग्स टू this set, okay. So therefore this is the principal value, okay. Therefore principal value is -π/6. This is your answer. So this is how you have to check every time your answer. आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन हमें लास्ट में चेक ये ज़रूर करना है कि जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो फिर से हमें उसको उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. So in the second part we have cos inverse of √3/2. Okay. So again what we have to do, let's check this value √3/2 from the trigonometric table. So you have, so cos √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू है हमारी? π/6 की, ठीक है। √3/2 π/6 की वैल्यू है. So what you can do, you have to just write cos inverse. अब ये वैल्यू हमें किसकी मिली है? cos π/6 की, ठीक है। अगेन दिस इज cos इनवर्स एंड दिस इज cos, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? π/6. Now what is the last step? You have to check whether this π/6 belongs to the principal value branch for cos inverse or not. So what is the principal value branch for this? We know that it is 0 to π. 0 to π है मतलब 0 to 180 डिग्री. π/6 क्या है? 30 डिग्री. आ रहा है इसमें? Yes, of course आ रहा है. तो π/6 क्या हो गया? That belongs to the principal value branch. So this is actually the principal value. π/6 इसका आंसर हो गया. Okay. Now let's check the next question. So next is cosec inverse 2. ठीक है, cosec इनवर्स 2 हमें देखना है. सेम वे 2 की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखनी है. किसकी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? 2 की वैल्यू, ठीक है. cosec 2 की वैल्यू किसकी आएगी? तो 2 कहाँ पर आ रहा है? ये रहा. किसकी वैल्यू है ये? π/6. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? cosec इनवर्स ऑफ दिस 2 इज एक्चुअली cosec π/6. अगेन वी हैव cosec इनवर्स एंड cosec, सो दिस गेट कैंसिल, सो द आंसर इज π/6. ठीक है. अब हमें क्या चेक करना है? π/6 के लिए हमें देखना है कि π/6 जो है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं, ठीक है. कॉसेक के लिए हमारी रेंज क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया था, कॉसेक किसके साथ आता है? साइन के साथ. रेंज क्या है हमारी? π/2 -π/2 टू π/2 -0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस, इसमें सिर्फ 0 हटाना है, तो π/6 बिलोंग्स टू दिस. सो लेट्स सी द फोर्थ वन, tan इनवर्स ऑफ -√3. अभी इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ रहा है. सो यू नो दैट tan इनवर्स ऑफ -x, ठीक है. ये फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? माइनस ऑफ tan इनवर्स x. माइनस साइन को हम बाहर ले लेंगे. तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम tan इनवर्स √3 -√3 को सॉल्व करेंगे तो हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3. अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी √3 जो वैल्यू है वो टेबल में कहाँ पर है. तो √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 इज 60 डिग्री. तो टेबल में देख लेंगे हम. यहाँ पर क्या हो रहा है? tan थीटा √3 कहाँ पर आ रहा है? 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब पाई में हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/3. तो इट इज़ π/3. तो ये हो जाएगा tan π/3. सेम वे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/3. फिर चेक करना है कि -π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है हमारे पास? -π/2 टू π/2, ठीक है. -π/2 टू π/2 क्या है? -90 टू 90 डिग्री. और ये वैल्यू क्या है अपने पास? -60 डिग्री. आ रहा है? तो येस आ रहा है ये तो इसमें. सो -π/3 बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सो दिस इज द आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स -1/2. So for cos inverse -x we have to use the formula π minus cos inverse x. तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2। सो सेम वे वी हैव टू चेंज दिस पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा हाफ। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/2। क्या हो जाएगा 1/2 टेबल से कॉस इनवर्स। सो हाफ इज फॉर हाफ इट इज 60 डिग्री। ओके, सो इट इज π/3। सो द वैल्यू इज कॉस π/3। नाउ इट इज पाई माइनस, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है, तो वैल्यू क्या बचेगी π/3। सो वी हैव टू सॉल्व दिस। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मिलेगा एलसीएम लेके 3π माइनस π/3। सो आंसर इज 2π/3। ठीक है, 2π/3 मिलेगा। अगेन वी हैव टू चेक वेदर दिस लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यू। सो फॉर कॉस द प्रिंसिपल वैल्यू इज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 to π। 0 to π मतलब 0 to 180 डिग्री। उसमें हमें ये चेक करना है 2π/3 लाई करेगा या नहीं। तो 2π/3 की वैल्यू है क्या 2π/3। सो इफ़ यू चेक इट इज़ 2 × 180/3। सो इट इज़ 60। ये कितना हो रहा है 120। तो 120 डिग्री 0 to 180 में आएगा, यस आएगा। तो इट इज़ 2π/3 lies between this. So this is actually the principal value of this cos inverse 1 minus 1/2. Okay, now let's take the next question 6, which is tan inverse of -1. Now for tan inverse of -1, this is tan inverse। अब ये क्या करेंगे हम, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan inverse of -x is equal to minus tan inverse x। माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -1, आंसर में क्या आएगा माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पर x क्या है 1। 1 किस पर आता है tan की वैल्यू π/4 पे 45 डिग्री पे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स π/4। तो यहाँ पे हम tan ही लिखेंगे ना, tan π/4। tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस π/4। लेकिन हमें फिर से वही काम करना है, इसमें हमें चेक करना है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रही है या नहीं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके लिए क्या होता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x। इसमें हमें चेक करना है ये वैल्यू आएगी कि नहीं। ये वैल्यू हमारी क्या है 45 डिग्री π/4, और ये है -45 डिग्री। ये वैल्यू क्या है -90 to 90। तो आ रही है हमारी वैल्यू इसमें। तो येस इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। जब ये बिलोंग करेगा तभी ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी। तो इस केस में -π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेक इनवर्स 2/√3। फिर से हमें चेक करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि 2/√3 की वैल्यू क्या है। सो इफ़ यू चेक फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2/√3 इज, सो 2/√3 कहाँ पर आ रहा है π/6 पे। ठीक है, सेक में 2/√3 कौन सी वैल्यू है 30 डिग्री, इट इज π/6। तो हमें जस्ट उसको रिप्लेस कर देना है। सो वी विल गेट द वैल्यू एज सेक इनवर्स sec of π/6। तो ये आंसर क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा वही लास्ट एक हमारा स्टेप रह जाता है जब हमें चेक करना है कि π/6 प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा या नहीं आएगा। तो हमें चेक करना है क्या, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखनी है। तो सेक के लिए हमारी प्रिंसिपल ब्रांच सॉरी कहाँ से आएगा 0 to π माइनस π/2। अब ये है वैल्यू π/6, इसमें तो सिर्फ π/2 माइनस हुआ है, पर इसके अंदर π/6 तो है। सो दैट मीन्स π/6 बिलोंग्स टू दिस रेंज। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज cot इनवर्स √3। सेम cot इनवर्स √3 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू cot इनवर्स। नाउ अगेन यू हैव टू चेक दिस वैल्यू फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें cot में देखना है। तो cot में √3 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू क्या है मतलब π/6। सो अगेन द सेम थिंग यू हैव टू राइट cot π/6। यहाँ पे भी cot इनवर्स है, cot है, so the answer is actually π/6। and the same way you have to write for this range। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए लिखना है कि क्या π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं। तो हमें पता है कि ये तो π/6 है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। तो यस ऑब्वियसली। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स इट इज -1/√2। ठीक है, cos के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है जब माइनस होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा -1/√2। सो इट बिकम्स पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, नाउ इट इज़ पाई माइनस, नाउ फॉर विच वैल्यू इट इज़ 1/√2, दैट इज़ 45 डिग्री।
तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस पाई बाई 4, और 40 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, इट इज़ पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा। सो पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये आंसर क्या हो गया, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 3 पाई अपॉन 4। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फॉर कॉस इनवर्स इट इज़ 0 to पाई, और ये है हमारा 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 पाई बाई 4। सो यू हैव टू चेक दिस, इट इज़ 180 अपॉन 4, ठीक है। कैंसिल करेंगे, सो इट इज़ 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड देन यू हैव टू 45, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी एंड देन यू हैव 12 135, मतलब 135 डिग्री 0 to 180 में आएगा, येस ऑब्वियसली आएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आ रहा है आंसर, इसलिए हमारी ये जो है 3 पाई अपॉन 4 प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टेक द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। व्हाट इज कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2? फॉर्मूला देखेंगे हम कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, जस्ट यू हैव टू टेक माइनस साइन आउटसाइड, ओके। सो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ओके। सो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, जस्ट राइट दिस, सॉरी, रूट 2 किस पे हमें वैल्यू मिलेगी, कॉसेक की, जिससे साइन पे हमें किस पे मिलती है, 1/√2 मिलती है 45 पे। सेम वे कॉसेक की वैल्यू किस पे मिलेगी, 45 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू किस पे हो जाएगी, 45, कॉसेक 45 मतलब पाई बाई 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये माइनस और कॉसेक इनवर्स और कॉसेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक दिस इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमें चेक करना है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। हमें अब किसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है, हमें देखना है कॉसेक के लिए, ओके। सो फॉर कॉसेक द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड यू हैव टू डू माइनस 0। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर तो माइनस पाई बाई 4 है, हाँ वो लाई करता है इसके बीच में, 0 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ये वैल्यू तो इसमें आ रही है। सो दिस बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, so this is your answer, principal value of cosec inverse minus 2. So I hope this is clear.